Let's start with combinations. Combinations are all about what? Selection. In the previous session we have seen that permutations is all about arrangement and combination is all about selection. Let us understand the basic formula of combination. It is NCR, which is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. Let's try to understand how to use this formula. Say for example, if someone is asking me to find out 12C4. Someone is asking me to find out 12C4. How to find out? Please concentrate. 12 is n, so 12 factorial upon, in the place of r I will put 4 factorial, n that is 12 minus r that is 4 factorial. Now friends, please check 12 factorial upon 4 factorial into 8 factorial. How to simplify? 12, 11, 10, 9. I'll keep 8 factorial. 4, 3, 2, 1 into 8 factorial. 8 factorial cancel. 4 into 3, 12. 2 into 5, 10. So 11 into 5 into 9. If you do it with your calci, it will be 495. So 12C4 is going to be 495. Let me explain you shortcut. Yes, what is the shortcut? If you want to find out 12C4, which is equal to 12 say reverse way 4 step, so 12, 11, 10, 9 and 4 say reverse way 1 tak. That's it. That will come to 495 only. So both the methods are fine, whatever you want to use. Let me show you some of the important results. This one is a nice. NCR is equal to NCN minus R. NCR is equal to NCN minus R. Try to understand. Let me put NCR. We have the basic formula na, n factorial upon r factorial n minus r factorial. This is result number 1. Let me put NCN minus R. एकदम ध्यान से. सबसे पहले ना n फैक्टोरियल आएगा अपॉन r की जगह पे अभी क्या है, n माइनस आर है, तो shall I put n माइनस आर फैक्टोरियल एंड उसके बाद n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल. आई होप यू अंडरस्टैंड. n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल. So what will be left over? n factorial n minus r factorial. n minus n 0 हो जाएगा, so यहाँ पे क्या रहेगा, r factorial. Can I say n factorial upon, सिर्फ इसको अरेंज करता हूँ, n minus r factorial. You can see result number 1 and result number 2 are same. So NCR is equal to NCN minus r. Do you know where to use it? मैं बताता हूँ. Example 11C8 होगा. अगर आपको फाइंड करना है 11C8, तो इट इज इक्वल टू 11C11 माइनस 8. डू यू अंडरस्टैंड? NCN माइनस R. प्लीज सी इट केयरफुली. NCN माइनस R. n कितना है? 11 माइनस 8. सो कैन आई से 11C8 इज इक्वल टू 11C3. आंसर दोनों का सेम ही आएगा. ठीक है. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. 10C6 is equal to 10C10 minus 6. That's equal to 10C6 is equal to 10C4. आंसर सेम ही आएगा. तो क्या है ये 10 और 6 का जो डिफरेंस होगा, अगर आपने वो यहाँ पे रख दिया तो भी आंसर सेम ही आने वाला है. That is why we use this result over here. NCR is equal to NCN minus R. Okay, done. Let us have some important results. C0 is equal to 1. This is a result. Let's try to see it. NCR is equal to क्या बेसिक फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. सो लेट्स पुट NC0. n की जगह पे n फैक्टोरियल, r की जगह पे 0 फैक्टोरियल. दिस इज n माइनस 0 फैक्टोरियल. फ्रेंड्स 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू n फैक्टोरियल. n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल.
कैंसल, 1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो एन सी 0, क्या प्रूव हो जाएगा 1. वन मोर, एन सी एन is also equal to what 1. Let me put the formula. NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. n factorial upon r की जगह पे भी क्या लिखना है, n ही लिखना है, n minus n. I hope you understand. Now n factorial cut, n minus n मतलब 0 factorial, 1 upon 0 factorial, and 1 upon 1 is equal to 1. Why? Because 0 factorial always comes to 1. Okay, so these were the basic results. इसके बाद we can start with exercise 9.2 from B.S. Shah. It is page number 389. Let's have question number 1. They are mathematical question. Let us solve it out. Okay, it starts with 21. So question number 21, mathematical question. Let's start. It is 10C4. Okay, tell me NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. So if you want me to find out 10C4, what it will be? 10 factorial upon 4 factorial 10 minus 4 factorial. What to do? 10 factorial upon 4 factorial into 6 factorial is equal to 10, 9, 8, 7, 6 factorial upon 4, 3, 2, 1 into 6 factorial. 6 factorial cancel. 210 will be the answer. Let us see second one. Of course, I will not be doing all the questions. All are same type. 40C37. Okay. Here I can use what? NCR is equal to NCN minus R. So what will happen? 40C37 is equal to 40C40 minus 37. So it comes to 40C3. Let me find out. 40, 39, 38 divided by 3, 2, 1. So in your calcs, 19 into 13 and into 40. So it comes to 9880. That's the answer. Let's see question number 23. Question number 23. I hope 21 के remaining आप लोग आराम से कर पाओगे. That's why we are skipping it. Come to question number 23. What they are asking? 9C5 plus 9C6 plus 10C7 plus 11C8. ओके, इसका अगर आंसर चाहिए तो इसको थोड़ा ऐसा इजी करने के लिए 9C5 की जगह पे 9C4 लिख सकते हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? यही वाला जो अपना रिजल्ट है वो यूज़ कर रहे हैं. 9 और 5 का डिफरेंस 4 प्लस 9C6 की जगह पे बताओ चलो क्या लिख सकते हैं? 9C3. ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10C3 एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 11C3. ओके, विल यू बी एबल टू गेट द आंसर ऑन योर ओन? It's very simple. Come to question number 24. 12CR minus 2 is equal to 12CR. Okay, try to see. Friends, remember, whenever base is equal, आपने देखा दोनों में 12C है. That means what? Whenever base is equal, first alternative is r minus 2 is equal to r sorry, r minus 2 is equal to r. इसको एक साइड पे लेके आएंगे ना तो this will become impossible. So what another option you can get? r minus 2 plus r, ये दोनों को ऐड कर दो. r minus 2 plus r is equal to 12. So क्या हो जाएगा? 2r is equal to 14. So r is equal to क्या हो जाएगा आपके पास? 7. यहाँ पे क्या हुआ? एक r इम्पॉसिबल हुआ. क्या कर सकते हो आप? दोनों को इक्वल रख सकते हो या तो फिर दोनों को ऐड करोगे. इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाना चाहिए? 12 मिल जाना चाहिए. ठीक है, आई एम डूइंग द सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 25. 11CR is equal to 11C 2R minus 1.
what I can do, r is equal to 2r minus 1, r इस साइड चला जाएगा, 1 इस साइड आ जाएगा, तो r is equal to 1 ऐसा आंसर आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. और r plus 2r minus 1 is equal to 11, 3r is equal to 12, r is equal to क्या आएगा 4. So there are two answer, r is equal to 1 भी हो सकता है, r is equal to 4 भी हो सकता है. Is it fine with everyone? Let us have question number 26. Okay. In how many ways 2 teachers and 3 students can be selected from 5 teachers and 7 students? अपने पास टोटल कितने हैं? 5 teachers and 7 students. क्या सिलेक्ट करना है इसमें से आपको? 2 teachers and 3 students. इट्स वेरी सिंपल. कहना इसे 5 में से 2 टीचर सिलेक्ट करने हैं एंड 7 में से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं. ठीक है. अब 5 में से 2 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 7 6 5 डिवाइडेड बाई 3 2 1. यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 35 रहेगा. 10 इंटू 35 एंड दैट कम्स टू व्हाट 350. आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल. क्वेश्चन नंबर 27. In how many ways a committee of 6 persons can be formed? Okay, let me write down. Committee कितने की चाहिए मुझे? 6 persons की चाहिए. Please make sure that you are able to remember this. आपको 6 person की कमिटी चाहिए कैसे भी करके. From 6 professor and 8 students. आपके पास है कितने? 6 प्रोफेसर है और 8 स्टूडेंट है. फिर से एक बार याद करो कितने की कमिटी चाहिए? 6 लोगों की कमिटी. चलो क्या कंडीशंस है? So as to include at least 1 and at the most 3 प्रोफेसर. मतलब क्या हुआ? मिनिमम 1 प्रोफेसर होना चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 3 प्रोफेसर होने चाहिए. नाउ फ्रेंड्स प्लीज चेक. मिनिमम अगर मैं 1 प्रोफेसर रखता हूं तो मुझे 5 स्टूडेंट रखने पड़ेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि कैसे भी करके टोटल तो 6 करना ही है. और मैं अगर 2 प्रोफेसर रखता हूं तो मुझे कितने रखने पड़ेंगे? 4 स्टूडेंट रखने पड़ेंगे. और अगर मैं 3 प्रोफेसर मैक्सिमम रखता हूं तो मुझे 3 स्टूडेंट रखने पड़ेंगे. आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? ठीक है. देखो दिस इज द लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब देखो 1 प्रोफेसर कहना इसे 6 में से 1 प्रोफेसर एंड 8 में से 5 स्टूडेंट और 6 में से 2 प्रोफेसर एंड 8 में से 4 स्टूडेंट और 6 में से 3 प्रोफेसर एंड 8 में से 3 स्टूडेंट. कैन वी सिंप्लीफाई दिस? अगर इसको आपने सिंप्लीफाई किया नॉर्मल अपने वे में, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज गोइंग टू बी, यहाँ का आंसर ये ब्रैकेट का 336, इस ब्रैकेट का 1050 एंड इस ब्रैकेट का 1120 एंड फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2506. आई होप यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. मुझे अभी इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक के अंदर है. दिस लॉजिक इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 28. Once again an important question. थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को. A person is having 10 friends including 4 females. Let me put it. A person is having 10 friends including 4 female. तो 10 में से 4 फीमेल है तो कहना इसे बाकी के 6 मेल फ्रेंड्स होंगे. We are not analyzing any other option. In how many ways can he invite 5 friends? Okay. इन्विटेशन कितने को देना है? 5 फ्रेंड्स को. टोटल कुछ भी हो जाए 5 को इनवाइट करना है. बस ये ध्यान में रखना. 5 फ्रेंड को इनवाइट करना है. कैसे? सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 फीमेल्स. डू यू अंडरस्टैंड? एटलीस्ट 2 फीमेल्स. एटलीस्ट 2 फीमेल्स का मतलब क्या हुआ? मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा फीमेल्स होगी तो चलेगा. लेट अस सी. अगर मैं 2 फीमेल्स को इन्वाइट करता हूं तो टोटल 5 करने के लिए 3 क्या होने चाहिए? मेल होने चाहिए. और एटलीस्ट 2 मतलब दूसरे ऑप्शन में 3 फीमेल्स तो 2 मेल होंगे और 4 फीमेल्स तो बैलेंसिंग फिगर 1 मेल. क्यों बैलेंसिंग फिगर? क्योंकि टोटल तो 5 करना है ना. लेट अस सी नाउ. 4c2 इंटू 6c3. आई होप यू अंडरस्टैंड. 4 में से 2 फीमेल, 6 में से 3 मेल और मतलब प्लस 4c3 इंटू 6c2 और 4c4 इंटू 6c1.
इज इट डन? ओके, विल यू बी एबल टू सॉर्ट आउट? चलो मैं करवा देता हूँ. 4C2 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 6 5 4 डिवाइड बाई 3 2 1. और 4C3 यू नो वेरी वेल, 4C3 में सिर्फ 4 ही बचता है. इंटू 6C2 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एनीथिंग NCN मतलब वो तो 1 ही आएगा एंड इंटू 6 आएगा. लेट्स सी, कैंसलेशन करके देख लेते हैं. यस, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4. व्हाट इज द फाइनल आउटकम? 120. इसमें क्या रहेगा? 60. So 186 ways will be the answer. I hope you are with me. Let's take question number 29. A person wants to invite 4 friends out of 7. अब देखो 7 में से 4 लोगों को इनवाइट करना है. कितने लोगों को इनवाइट करना है? इनविटेशन 4 लोगों को देना है. ठीक है. If 2 particular friends do not wish to come together. अब देखो ये 7 में से 2 पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफाइड फ्रेंड्स एक साथ नहीं आना चाहते, बाकी के 5 तो अदर्स है. अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. 7 में से अगर 2 फ्रेंड एक साथ नहीं आना चाहते, मतलब कि मान लो उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, वो बोलते हैं कि हम लोग एक साथ नहीं आएंगे, ये आया तो मैं नहीं आऊंगा एटसेट्रा. अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप लोग समझो, ये जो 2 स्पेसिफाइड फ्रेंड्स है उसमें से किसी एक को ही बुला सकता हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन. एंड टोटल 4 करने हैं, 4 में से एक तो ये आ गया तो अभी 3 बचेंगे, तो 5 में से मैं 3 को बुला लूंगा. या तो फिर मैंने बोला आप दोनों घर पे रहो, मैं बाकी के 5 में से ही 4 को बुला लूंगा. आर यू गेटिंग द लॉजिक? फिर से एक बार, 2 जो स्पेसिफाइड फ्रेंड्स है उसमें से हम लोग एक को बुलाएंगे एंड 5 में से बाकी के 3 को बुला लेंगे, और 2 में से किसी को भी नहीं बुलाएंगे और बाकी के 5 में से 4 को बुला लेंगे. तो कहना इसे इट इज 2 इंटू ये हो जाएगा 10. आई होप यू अंडरस्टैंड. NC0 मतलब 1, 5C4 इज इक्वल टू 5, दैट कम्स टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 ways. 25 ways. Is it done? Okay.